Hello guys, good morning to all of you. Today we will discuss about heterogeneous equilibrium or heterogeneous equilibria. We discuss about homogeneous equilibrium. In homogeneous equilibrium, that equilibrium process in which reactant and product species will be present in same physical state, and in heterogeneous equilibrium, that chemical process in which liquid reactant and product species are present in different species, or at least one species are present in a different physical state. Examples: H2O are present in equilibrium state like as H2O. This is liquid and this is गैस और वाइपर फेज, बहुत इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. तो ये लिक्विड और ये गैस, ये आपका हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है. अदर एग्जांपल सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट प्लस एक्वस मीडियम इक्वल टू Ca2 प्लस OH negative 2. Aqueous medium and aqueous medium, in which calcium hydroxide are present in solid and aqueous water, and aqueous. These species are present in aqueous medium and it present in solid medium. Therefore, it is a heterogeneous. And in homogeneous, all state, physical state, all species are physical state are same physical state, but in heterogeneous physical state of the reactant product, at least one species have different physical state. Other example, CaCO3 calcium carbonate present in solid state and it's decomposed in calcium oxide and CO2. Calcium oxide is solid state and CO2 is in gas state. Two species have same physical state, solid, and one is gaseous state. Therefore, it is a heterogeneous mixture. At least one species are present in different physical state in an equilibrium is known as heterogeneous, and in homogeneous, all species have same physical state. For writing the equilibrium constant Kc for this reaction, means concentration of calcium oxide into concentration of or reactive mass of carbon dioxide upon concentration of CaCO3, in which this species and this species are present in solid state and this species is gaseous state. We know that solid state and gaseous state. In solid state, equilibrium of solid state concentration of substance is not change, means concentration of substance will be unit value. Therefore, if in a chemical equilibrium species are present in solid state, then their equilibrium, then their concentration are present in यूनिट वैल्यू, मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1, मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपकी चेंज नहीं होगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी. तो इसकी वैल्यू यूनिट सपोज किया जाता है. तो इस केस में अगर Kc की वैल्यू के लिए यहाँ डिनोट करते हैं तो इसके जगह पे सॉलिड स्टेट के फॉर्म में इसके जगह पे 1 डिनोट करते हैं इंटू कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आपका चेंज होगा, इसका अलग होगा, अपॉन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1. देयरफॉर इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए Kc की जो वैल्यू आपकी ऑब्टेंड होगी वो ओनली CO2 के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इसके इक्वल होगा. ये इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम का. तो किसी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर के लिए अगर स्पीसीज आपका सॉलिड फॉर्म में है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, उसका कॉन्सेंट्रेशन इसके वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता, मतलब इसके कॉन्सेंट्रेशन पे ये वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा. मीन्स Kc की वैल्यू सॉलिड स्टेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी, मीन्स सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट सपोज की गई है. तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें अगर हेटेरोजीनियस प्रोसेस है तो उस केमिकल रिएक्शन में
उस सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन 1 सपोज की जाती है। अदर एग्जांपल्स अगर देखते हैं, निकिल प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड 4 इक्वल टू NiCO4, निकिल टेट्रा कार्बोनिल। दिस इज present in gaseous state, carbon monoxide present in gaseous state, and it is solid state. Then their value denoted for Kc equal to concentration of tetracarbonyl nickel अपॉन concentration of Ni सॉलिड फॉर्म में है, इसके लिए 1 सपोज कर लेंगे, और अपॉन concentration ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पावर 4। तो इसके लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्टेंड होगी। मीन्स अगर कोई हेट्रोजीनियस प्रोसेस है तो उसमें जो सॉलिड स्टेट होगा उस सॉलिड स्टेट की कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास को 1 सपोज कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, Ag2O सॉलिड फॉर्म प्लस HNO3 एक्वस और लिक्विड फॉर्म 2HNO3, रिवर्सिबल प्रोसेस 2AgNO3 एक्वस मीडियम और लिक्विड फॉर्म प्लस H2O लिक्विड फॉर्म। इसके लिए Kc की वैल्यू अगर आप डिनोट करते हैं तो एक्टिव मास ऑफ AgNO3 नंबर ऑफ मोल टू एक्सपोनेंट, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू यूनिट सपोज की जाती है, इसकी जगह पे 1 डिनोट करेंगे, अपॉन सॉलिड फॉर्म में इसके लिए यूनिट वैल्यू सपोज करेंगे तो इसको भी डिनोट नहीं करेंगे, इसको भी डिनोट नहीं करेंगे, इनटू H अपॉन HNO3 एक्टिव मास पावर 2 नंबर्स ऑफ मोल टू। तो ये इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्टेंड होती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन ऑब्टेंड होता है। तो याद रखिएगा कि हेट्रोजीनियस प्रोसेस में अगर लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में कोई भी स्पीसीज है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन और एक्टिव मास 1 सपोज की गई है, 1 सपोज की जाती है, उसकी मतलब मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती है। तो यह आपका था हेट्रोजीनियस। प्रॉब्लम 7.6 आप सॉल्व करेंगे, इसी के बेस पे है, सॉल्व हो जाएगा। फिर इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन, equilibrium constant is applicable only when concentration of the reactant and product have attained their equilibrium state। मीन्स कांस्टेंट तभी वैल्यू है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपका कांस्टेंट हो जाए, मीन्स जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन है वो सेम रेट से ग्रोथ करें। सेकेंड पॉइंट है, the value of equilibrium constant is independent of initial concentration of the reactant and product। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है इस पे इंडिपेंडेंट होती है, इस पे इंडिपेंडेंट है कि यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट आपकी एप्लीकेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंड हैविंग वन यूनिक वैल्यू फॉर पार्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंट बाय द बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे ही डिनोट की जाती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे वैल्यू डिफरेंट ऑब्टेंड हो सकती है। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो Kc की वैल्यू आपको Kc और K' में रिलेशन दिया गया था, Kc और Kd से अगर एक ही रिएक्शन आपका है, जैसे रिएक्शन आपका ये है A टू B, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है, दूसरा रिएक्शन B टू A
इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश सी है, तो के सी और के डैश सी में आपका यही रिलेशन होगा, इसका इन्वर्स होगा के डैश सी का। तो इस तरह से ये आपका फोर्थ एप्लीकेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, कोई रिएक्शन अगर उसको रिवर्स करके लिखा गया है तो उसका रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द रिएक्शन इज रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ करेस्पॉन्डिंग रिएक्शन whose equation is obtained by multiplying or dividing our equation original reaction by a similar integer। मतलब ये रिएक्शन अगर इसको हम 2 कर देते हैं, ये आपका के सी की जो वैल्यू हो जाएगी, के सी का स्क्वायर के सी डैश डैश करेंगे तो इस तरह से नंबर्स ऑफ मोल एक्सपोनेंट के फॉर्म में चला जाएगा। डिक्रीज करेंगे डिक्रीज होगा, इंक्रीज करेंगे इंक्रीज होगा। इसको पहले आपको पीछे डिस्कस किया गया है। Let us consider the application of equilibrium constant to predict the extent the reaction on the basis of magnitude। मैग्नीट्यूड के बेस पे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आप कंडक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस केसी की वैल्यू की हेल्प से। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन किया है मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किया है, जिसको प्रॉब्लम 7.4 में सॉल्व किया गया है। तो यह आपका था एप्लीकेशन में फर्स्ट बताया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेंड देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। जब इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड करता है तभी केसी की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकंड ये कहा गया था कि द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे इंडिपेंडेंट है। थर्ड एप्लीकेशन यहाँ पे आपको बताया गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट हैविंग वन यूनिक वैल्यू, मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू एट डिफिनिट मतलब फिक्स टेम्परेचर पे ही, गिवन टेम्परेचर पे ही ऑब्टेन करते हैं। अगर दूसरा टेम्परेचर करेंगे तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो सकती है। नेक्स्ट आपका कहा गया है एप्लीकेशन में द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू इ रिवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टू द रिएक्शन। अगर रिएक्शन आपका इस तरह से ए टू बी या बी टू ए तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके रेसिप्रोकल होगा। अगर नंबर्स ऑफ मोल इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो उसी हिसाब से ये अंडर रूट या स्क्वायर के फॉर्म में हम के सी और के सी डैश में रिलेशन ऑब्टेन करते हैं, जो पीछे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। predicting the extent of reaction, extent of reaction। जैसे ये आपका रिएक्शन है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, इसके लिए अगर के सी की वैल्यू आप अटेंड करते हैं तो एक्टिव मास ऑफ सी इंटू एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। के सी की वैल्यू आपकी ये ऑब्टेंड होती है। अब के सी की वैल्यू बताएगी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम हो रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। के सी की वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है और मिनिमम हो सकता है। के सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी मीन्स सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन आपका मैक्सिमम प्रोसीड करेगा। के सी की वैल्यू मिनिमम होगी तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगा, मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम प्रोसीड होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन मिनिमम प्रोसीड होगा, मीन्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो के सी की वैल्यू मैक्सिमम ऑब्टेंड होती है तो रिएक्शन मैक्सिमम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। के सी की वैल्यू मिनिमम होती है तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करता है, मीन्स ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। तो ये के सी की वैल्यू डिफाइन करेगी कि रिएक्शन आपका किस डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। के सी इज़ लेस दैन, इफ़ के सी इज लेस दैन 10 पावर 3, के सी की वैल्यू अगर 10 पावर 3 से कम ऑब्टेंड होती है, प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंट ओवर रिएक्टेंट। इफ़ के सी इज़ वेरी लार्ज द रिएक्टेंट प्रोसीड नियरली कंप्लीशन, कंसीडर द फॉलोइंग। अब के सी की वैल्यू मैक्सिमम बिल्कुल हाईएस्ट ऑब्टेंड होता है
मीन्स कहेंगे कि इसकी वैल्यू बिल्कुल कम होगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसकी बिल्कुल मिनिमम, मतलब कह सकते हैं कि मैक्सिमम रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मीन्स ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यह केसी की वैल्यू 10⁻³ या इससे ग्रेटर ऑब्टेंड होता है तो मीन्स कहते हैं कि ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये रिएक्शन ए और बी टोटल इसमें कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इक्विलिब्रियम ऑब्टेंड होता है तो मिनिमम आप क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन अगर केसी की वैल्यू 10⁻³ या इससे मैक्सिमम ऑब्टेंड होता है तो ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और इस रिएक्शन को आप कंप्लीट रिएक्शन कह सकते हैं। सेकंड इसी में कहा गया है केसी, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे द रिएक्शन ऑफ H2 विथ O2 एट 500 केल्विन हैज़ वेरी लार्ज इक्विलिब्रियम। H2 और O2 का रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो इसके लिए केसी की वैल्यू जो ऑब्टेंड होती है 2.4 इंटू 10⁻47 10⁻4 मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। मीन्स ये दोनों रिएक्टेंट स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, कहेंगे कि ये रिएक्टेंट स्पीसीज टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मीन्स ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये रिएक्शन आप कंप्लीट मानेंगे। दूसरा एग्जांपल दिया गया H2 + Cl2, H2 + Cl2 इक्वल टू HCl बनेगा। तो इसके लिए केसी की जो वैल्यू ऑब्टेंड की गई है, ऑब्टेंड होती है 4 इंटू 10⁻31। ये भी वैल्यू आपका मैक्सिमम है। मीन्स कह सकते हैं कि मैक्सिमम आर नियर अबाउट ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट सपोज किया जाएगा, ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट, क्योंकि इसके लिए केसी की वैल्यू इतनी है। वैसे HBr के लिए H2 और Br2 करते हैं, H2 + Br2 इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करते हैं। इसके लिए केसी की वैल्यू ऑब्टेंड होती है 5.4 इंटू 10⁻18। मीन्स ये भी वैल्यू आपका 3 से मैक्सिमम है, मोर है। इस केस में कहेंगे कि ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है। मैक्सिमम मतलब नियर अबाउट ऑल रिएक्टेंट स्पीसीज आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये भी रिएक्शन आपका कंप्लीट। तो केसी की वैल्यू 3 या 10⁻³ या इससे ज़्यादा आता है तो आप कहेंगे कि ये रिएक्शन आपका वन डायरेक्शन में नियर अबाउट मतलब मीन्स 99% कंप्लीट हो रहा है। मतलब ये रिएक्टेंट स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम हो जा रही है और प्रोडक्ट स्पीसीज की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम। इसको आप कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जा रहा है। सेकंड पॉइंट है कि वैल्यू ऑफ केसी इक्वल टू वैल्यू ऑफ केसी लेस देन 10⁻³ द रिएक्टेंट। अब 10 पावर मीन्स बहुत मिनिमम है, मीन्स ये रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसको आप कंप्लीट रिएक्शन नहीं कहेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही मिनिमम है, मैक्सिमम मतलब कुछ ही बहुत लेस अमाउंट के रिएक्टेंट स्पीसीज रिएक्ट होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको आप नॉन कंप्लीट रिएक्शन कहेंगे। एग्जांपल्स कुछ दिया गया है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2 इंटू H2 + O2, डिकम्पोजिशन ऑफ H2 + O2। इस केस में डिकम्पोजिशन ऑफ H2 और H2 केस में केसी की वैल्यू ऑब्टेंड की गई है 4 इंटू 1 इंटू 10⁻18। तो यहाँ पे 48, यहाँ पे वैल्यू 48 मीन्स ये वैल्यू -48 10⁻³ से बहुत ही कम है। तो इस केस में ये रिएक्टेंट स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, बहुत ही कम रिएक्टेंट स्पीसीज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इस केस में आप कहेंगे कि ये रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है या ये रिएक्शन आपका कंप्लीट नहीं होता है। ये रिएक्शन एट 500 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट कराते हैं तो ये ऑब्टेंड होता है। मीन्स केसी की वैल्यू अगर 10⁻³ आती है तो उस रिएक्शन को भी आप कंप्लीट रिएक्शन नहीं कहेंगे, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। 10⁻³ से और भी कम आता है वैल्यू तो उस रिएक्शन को भी आप कंप्लीट रिएक्शन नहीं कहेंगे। इसके अलावा बुक में और एग्जाम्पल उसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इसी में है प्रेडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कैसे रिएक्शन के डायरेक्शन को हम प्रोसीड करेंगे, किस डायरेक्शन में आपका इक्विलिब्रियम ग्रोथ कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल्स है A + B = C + D। इसके लिए केसी की वैल्यू आप डिनोट करेंगे तो एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ
बी। ये आपका है कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एट इक्विलिब्रियम, केसी मीन्स एट इक्विलिब्रियम पे ये ऑब्टेन किया गया है। और यहाँ पे क्यू जो डिनोट करते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये भी आपका यही इक्वेशन आता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये वैल्यू किसी भी कंडीशन पे आपकी ऑब्टेंड होती है, एनी टाइम, किसी भी टाइम पे ये कभी भी। और ये इक्विलिब्रियम पे ये किसी भी टाइम अगर प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ऑब्टेन करते हैं तो इसको हम रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। और अगर इक्विलिब्रियम पे यही रेशियो ऑब्टेन करते हैं तो इसे आप केसी कहते हैं। अगर केसी की और क्यूसी की वैल्यू, क्यू सी ये है और ये केसी, क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम है, ये रिएक्शन आपका लेफ्ट साइड में ग्रोथ करेगा। नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन आपका होगा। रिएक्शन आपका इस डायरेक्शन में होगा। क्यूसी की वैल्यू केसी से अगर ज़्यादा है, ठीक इसी के अपोजिट क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी, तो इस केस में रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, राइट टू लेफ्ट। अगर क्यूसी की वैल्यू केसी के इक्वल है तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑब्टेंड होगा। तो ये क्यूसी और केसी के हेल्प से हम रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रोसीड करते हैं कि क्यूसी की वैल्यू केसी से अगर कम ऑब्टेंड होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यूसी की वैल्यू केसी से ज़्यादा है तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस क्यूसी और केसी के बेस पे हम रिएक्शन के डायरेक्शन को ऑब्टेन करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो यहाँ पे केसी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्यूसी को हम कहते हैं रिएक्शन कोसेंट। ये आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट है। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन पे किसी भी टाइम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो रिएक्शन कोसेंट होता है। और केसी आपका इक्विलिब्रियम जब अटेंड हो तब भी अगर हम निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो क्यूसी के बेस पे हम इक्विलिब्रियम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को हम प्रोसीड कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक्स।